Hello, good evening, students and my dear friends. As you all know that this is my YouTube channel with my name Yugal Pachori. So the topic for today's discussion is very simple, and without wasting any time, I will be strictly focusing. Let me check the camera angle. I'll be strictly focusing on the. Okay, it is perfect. So I'll be strictly focusing on the electronics engineering. Electronics engineering. I do have got very good response. So these are the things that I will. This the subject code is KOE 038 according to the AKTU, and I was teaching in RBS college. RBS ETC, Engineering Technical Campus. There I done 2 units, that is Unit 1 and Unit 2 were completed in the offline mode. So I am starting the syllabus again in the online mode. The mode is going to be online, and I am starting from unit number 3. So the topic of discussion is unit number 3, and all those students who are from the RBS college and who are the students of AKTU can watch my YouTube channel, can watch this video, and even more students who want to study topic wise, then also they can also watch this particular video. So the topic for discussion today is transistors. That is, the unit 3 is focused on the transistor. What are transistor? And in primarily जो unit 3 में जो है, we will focus on BJT. BJT is bipolar junction transistor. It is called bipolar junction transistor. I will tell you why it is called transistor in a later part of time, but let's start the story with the introduction of the transistor. What are transistor and what are the different types of transistor? So for right now, I'll be discussing the transistors. Okay. I'll be discussing transistors. So right now I will be discussing transistors. Let me write. Transistor. Basically, it is, first point is that it is a 3-terminal device. It means it has 1, 2 and 3 terminals. 1, 2 and 3. This is not the actual diagram of the transistor. This is just for the understanding that it has 3 terminals, 1, 2 and 3. That's why it is called a 3-terminal device. Before transistors, we have the vacuum tubes and triodes. We have vacuum triodes, or the vacuum tubes, or the vacuum triodes we have. But after the invention of transistor, and who invented transistor? Let me check the fact. The transistor was invented by Dr. William Shockley and Dr. John Bardeen. Dr. William Shockley and Dr. John Bardeen in 1951. In Bell Laboratories. So you can check the fact on the net and the books as well. In 1951, and if you will talk, this is 2022, and the transistor was invented in 1951. So 1, and we got 1 and 9, 12 and 71. So it is almost 71 year old. So the transistor, the way I am recording this YouTube video,
and presenting you in front of you with the help of the mobile phone. Mobile phone contains a millions or billions or trillions of transistor. तो अगर आज की तारीख में आप लोग मुझे YouTube के माध्यम से मेरे लेक्चर को देख पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द डॉक्टर विलियम शॉकले एंड डॉक्टर जॉन बार्डिंग हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स इन द ईयर 1951. That's why transistor is one of the greatest invention of the history in terms of electronics, in the field of electronics. That's why we need to study the transistor. The transistor is a 3-terminal device. So this is the first point. And who invented transistor was Dr. William Shockley and Dr. John Bardeen in Bell Laboratories in 1951. Now the next point. Now the next point is, what is the next point? Why it is called transistor? If we try to break the term transfer plus resistor, so what we are getting, we have the transistor, we have break this term into transfer plus resistor. That's why it is called transistor. All right, that's why it is called transistor. Give me 1 second. So yes, if we break the term, then we got transfer plus resistor. That we know the current. If we are transferring current from one body to another body, there will be change of resistance. Suppose transistor is flowing in this body, and the current is flowing in this body. This body is of aluminum and this body is of copper. So the copper and the aluminum both have different resistor. For this particular situation, for making transistor, we need two materials, aluminum and copper. But in transistor, what we are having is, we have the semiconductor diode, which is made up of silicon or the germanium. We connect the junctions in such a way that there are two junctions, and when these two junctions are connected with each other, then the action of the transistor, that is transferring of the current at different resistance level, is performed. That's why it is called transfer plus resistor. Hence the term transistor. It is called transistor. और पहले के ज़माने में लोग बाग जो है आपने अपने दादाजी और अपने पापा और अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को देखा होगा, तो रेडियो को ट्रांजिस्टर बोला करते थे. रेडियो को ट्रांजिस्टर क्यों बोला करते थे? क्योंकि बेसिकली जो रेडियो होता है उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पीसीबी जिसको बोलते हैं, पीसीबी मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. अगर एक पीसी में एक आईसी लगी हुई है, तो एक आईसी में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस तक ट्रांजिस्टर हो सकते हैं. और आज की तारीख में आप एप्पल और एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे हैं, तो उनमें, या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप, या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्लस रजिस्टर. अब फ्रेंड्स, इसके बाद में हम आते हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है. आप इस वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, प्ले पॉज बैक ऑप्शन करके भी देख सकते हैं. तो काफी सारे फंडामेंटल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए. अब आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर. फ्रेंड्स, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम किताब से तो हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जब भी हम यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं, तो हमारे दिमाग की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी हद तक क्लियर होती चली जाती है. तो इसीलिए मैं भी कई सारे यूट्यूब वीडियोस से सीखा हूँ. तो इसीलिए मुझे जो है यूट्यूब से वीडियो बनाने में काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ. ओके, सो द पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर. That is BJT and FET. BJT is bipolar and the FET is unipolar. Why it is called bipolar? Because the current is with the majority,
and minority charge carriers. And in the unipolar we have only the majority or the minority charge carriers. या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर होल्स होंगे, लेकिन यहां पर जो बीजेटी के केस में इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स और होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे करंट फ्लो होता है. तो इस करंट के फ्लो होने को हम बोलते हैं बीजेटी, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर. एंड द ट्रांजिस्टर व्हिच हैव द बाइपोलैरिटी, इट इज कॉल्ड bipolar junction transistor. And the transistor which has unipolarity, that is the current flow with the help of the majority or minority electron or holes, then it is called unipolar transistor. And it also has two junction, but and BJT also have two junction. दोनों केस में दो जंक्शन है, बट यहाँ पे दो की वजह से बाई नहीं है, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की वजह से बाई है. तो ये यूनिपोलर है क्योंकि इसमें एक टाइप का करंट फ्लो होता है, या तो इलेक्ट्रॉन से या फिर होल से. तो इसीलिए इसको बोलते हैं FET, क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम जब FET को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. इसमें फील्ड प्रोड्यूस होती है. देयर इज अ जनरेशन ऑफ फील्ड इन FET, दैट्स व्हाई वी कॉल द FET एज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. बट नाउ आई विल टेल यू more about BJT, and before telling more about BJT, I will put some light on the types of the FET and the types of BJT. Let me put some light on the BJT. There are two types of BJT. One is NPN and second is PNP. NPN, N-type, P-type, N-type. P-type, N-type and P-type. So there are two types of BJT, NPN and PNP. However, FET are of again two types, N channel and P channel. So let me write the types of the FET. I hope you like the video. If you like it, then please comment on it. और आपके कोई भी doubts or suggestions हैं और भी कोई आपके doubts हैं उनको आप मेरे से पूछ सकते हैं. So let me discuss the types of the FET. FET आपके दो टाइप्स के होते हैं. वन इज डिप्लीशन. बेसिकली मैं आपको बताता हूं. वन इज JFET, एंड अदर इज MOSFET. ओके, देन अगेन JFET आपके दो टाइप के हैं, N channel and P channel. Again MOSFET आपके दो टाइप के हैं, that is N channel and P channel. ठीक है, sorry, this is N channel and P channel. This is not N. MOSFET are of two types. One is depletion type and other is enhancement type. And the depletion type of other again two types. One is N channel and other is P channel. And again enhancement are of two types, N channel and the P channel. So students, these are the types of the FET that we are going to discuss, that we have discussed. FET is known as field effect transistor, which is a two type. Number one, JFET, junction field effect transistor. Number two is MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. And again FET, JFET are two types, N channel and P channel. If we have the charge carriers as the electrons, then it will form an N channel. If we have the charge carriers as the holes, then it will form a P channel. We will discuss later the further when we will discuss the FET. But again you need to understand the type here. And MOSFET again two types, depletion and the enhancement. There is a layer. A layer is formed after the silicon dioxide. The silicon dioxide, there is a deposition of the layer of the silicon dioxide, and before that we have a channel. If the channel is created, then it is enhancement type. If the channel is not created, then it is depletion. So friends, students, these are the types of the JFET and the
MOSFET, types of the MOSFET, which comes under the category of the types of the FET. So this is the short introduction about the types of the transistor. Now, in detail, I will come in to the bipolar junction transistor. In this video, I will cover up to the construction and the symbol and the biasing of the transistor. All right. So it will be hardly a half an hour or 20 minutes video. So be with it. Be patient. If you like the video, then you can comment. Okay. So let me discuss the bipolar junction ट्रांजिस्टर. देखिए ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया. इसको जंक्शन का मतलब क्या ये मैं अभी आपको बताऊंगा. बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. दैट व्हाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर. बाई मींस टू. नाउ जस्ट एज्यूम इज कंस्ट्रक्शन. ओके, सिंबल हम आपको बाद में बताएंगे. इसका जो है कंस्ट्रक्शन को देखिए, हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि देयर इज अ सिलिकॉन वेफर. ये सिलिकॉन वेफर है और सिलिकॉन वेफर क्या होता है ये आप सभी को मालूम है, मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये पहला टर्मिनल है जिसको बोलते हैं एमीटर, ये दूसरा टर्मिनल जिसको बोलते हैं बेस, और ये तीसरा टर्मिनल है जिसको बोलते हैं हम कलेक्टर. सो द एमीटर, बेस, लेट मी राइट इट फुल. एमीटर, बेस एंड दी कलेक्टर. फ्रेंड्स, अब इसके कंस्ट्रक्शन में जो सबसे थिनेस्ट एरिया होता है दैट इज दी बेस. आप इसकी जो विड्थ है उसको देख पा रहे होंगे कि सबसे कम विड्थ किसकी है, इस वाले रीजन की, विच इज कॉल्ड बेस. और मीडियम विड्थ किसकी है, दैट इज ऑफ एमीटर. एंड सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है, दैट इज ऑफ कलेक्टर. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था कि जस्ट वीडियो से थोड़ी देर पहले वीडियो में कि दो टाइप के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बीजेटी बोलते हैं. नंबर वन इज एनपीएन एंड नंबर टू इज पीएनपी. तो फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन वेफर है. अगर सिलिकॉन वेफर के एमीटर पार्ट को मैंने पेंटावेलेंट डोप किया तो ये क्या बन जाएगा, एन. और बेस वाले रीजन को ट्राइवेलेंट से डोप किया तो ये बन जाएगा पी. और अगेन कलेक्टर वाले पार्ट को मैंने पेंटावेलेंट से डोप किया तो ये बन जाएगा एन टाइप. और आप ये सभी जानते हैं कि जब भी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन वेफर में तो इट बिकम्स एन टाइप, और जब भी हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इट बिकम्स पी टाइप. व्हेन पेंटावेलेंट इट बिकम एन टाइप. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनपीएन. और इसके अपोजिट, यदि आपने एमीटर को ट्राइवेलेंट से डोप किया और बेस को पेंटावेलेंट से डोप किया और कलेक्टर को आपने ट्राइवेलेंट से डोप किया तो ये क्या बनेगा, पीएनपी. Hence it is called PNP transistors. So अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेटी कितने प्रकार के होते हैं. बीजेटी बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, NPN and the PNP. So students, these are the concept behind the construction of the bipolar junction transistor. अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताऊंगा. लेट मी रब दिस पॉइंट. कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन पढ़ ही रहे हैं, उसी चीज को हम देख रहे हैं. अब यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पर सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे कम एरिया किसका है. सबसे ज्यादा एरिया किसका है, कलेक्टर का, कलेक्टर. और उसके बाद किसका एरिया कम है, एमीटर का. और उसके बाद सबसे कम एरिया किसका है, बेस का. तो लार्जेस्ट एरिया इज ऑफ कलेक्टर, मीडियम एरिया इज ऑफ एमीटर एंड द लीस्ट एरिया इज ऑफ द बेस.
So this is the arrangement of the collector, ammeter and the base on the basis of the A. अगर हम बात करें डोपिंग लेवल की, डोपिंग क्या होती है सभी जानते हैं, इट इज द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डोपिंग किस में की जाती है, तो सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है आपके एमीटर में, उसकी बाद में डोपिंग की जाती है आपकी कलेक्टर में, और सबसे लीस्ट डोपिंग किसमें की जाती है, दैट इज इन दी बेस। तो सबसे ज्यादा हैवी डोपिंग किसमें करते हैं हम, एमीटर में, और मीडियम डोपिंग किसमें करते हैं हम, कलेक्टर में, और सबसे लीस्ट डोपिंग किसमें करते हैं हम, बेस में। सो दीज आर द 2 points, number 1 and number 2. These are 2 very important points to understand the construction of the bipolar junction transistor. The point is the basis of area and on the basis of the doping level. So with this understanding, I hope you all understood the construction of the bipolar junction transistor. These are 2 types, NPN and PNP. We have to understand it on the basis of the doping and on the basis of the area. Now, and अभी आपको नहीं समझ में आया किसी को, तो इसको फिर से रिकॉल करके देख सकते हैं, पॉज करके और रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आपको चीज़ें क्लियर आउट होती चलती। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिंबल ऑफ द बीजेटी, व्हाट आर द सिंबल ऑफ द बीजेटी। सिंबल को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिंबल को समझ गए तो जो भी न्यूमेरिकल्स हम आगे हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उनको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। सो लेट मी ड्रॉ सिंपल बीजेटी। मैं दोनों बना रहा हूं। दिस इज कलेक्टर, this is base and this is emitter. Again this is base, this is collector and this is emitter. So students, अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें एरो है, जिस साइड को भी एरो होता है, ये एरो का सिंबल जिसमें है, वो साइड कौन सी होती है, एमीटर। तो लाइकवाइज यहाँ भी एरो है, तो एरो वाली साइड कौन सी होगी, एमीटर। यहाँ भी एरो है नीचे की साइड में, तो एमीटर। यहाँ भी नीचे की साइड एरो है, ये एरो इसी से कनेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमीटर। और जो ऊपर वाली पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर, और जो बिटवीन में है जो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बेस। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर तो दोनों का सेम, मतलब दोनों डायग्राम्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा कि ऊपर कलेक्टर है, बीच में बेस है, और फिर बाद में एमीटर है। अभी मैं इसकी बाइसिंग में आपको ये चीज और बताऊंगा कि 2 टाइप के जंक्शन बनते हैं। जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा 2 टाइप के जंक्शन होते हैं, लेकिन फिलहाल सिंबल को समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जाता है, यानी कि ये साइड पॉजिटिव होनी चाहिए और ये साइड नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, ये साइड नेगेटिव होनी चाहिए। अब रह क्या गया, एन पी एन। भाई ट्रांजिस्टर एनपीपी तो होता नहीं है, या ना पीएनएन होता, सिंपल क्या होता है, एन पी एन। तो अगर ये एन है, ये पी है, तो कलेक्टर क्या होगा, एन। अगर एमीटर आपका पी टाइप है और बेस आपका एन टाइप है, तो कलेक्टर क्या होगा, पी टाइप। सो दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय स्टूडेंट्स, दिस इज एनपीएन एंड दिस इज पीएनपी। व्हाई आई से फ्रेंड्स, बिकॉज sometimes students do become friends and sometimes friends also watch the video, so it is the students and the friends. So this is NPN and this is PNP, hence this is the symbol of the BJT or the bipolar junction transistor. Okay, I hope you understood the symbol of the bipolar junction transistor. Now let me put some point on the biasing. Biasing
कनेक्शन तो अभी आगे फ्यूचर वीडियोस में आएंगे मेरे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अभी जो हमने को आपको बताना है वो सिर्फ मैं आपका तो अभी मुझे यहाँ तक जो बताना है वो मुझे सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि देखिए ये ट्रांजिस्टर मैंने बताया, दिस इज योर ट्रांजिस्टर, और बीच में ये होता है आपका बेस, दिस इज एमीटर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो एक जंक्शन तो बनेगा एमीटर और बेस के बीच में, इसको बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन, और एक जंक्शन बनेगा आपका बेस और कलेक्टर के बीच में, इसको बोलेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन। तो पहला जंक्शन तो हो गया एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा जंक्शन हो गया बेस कलेक्टर जंक्शन। यदि इसको मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया है, ये मेरा पहला जंक्शन हो गया एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा हो गया बेस कलेक्टर जंक्शन। तो कितने जंक्शन हो गए मेरे? 1 and 2। ये पॉइंट क्लियर है। अब यदि इसको मैंने फॉरवर्ड बाइस किया, और बाइसिंग आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको, ये मेरा लाइक एनपीएन है, मान के चलिए दिस इज एनपीएन, एन को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव से और पी को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। लाइकवाइज इसको मैंने, ये एन है तो एन के साथ में मैंने एन जोड़ दिया, एन को कनेक्ट किया माइनस से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसको रिवर्स कर देते हैं। एन को किससे जोड़ा मैंने? प्लस से, और ई को जोड़ा है माइनस से, तो ये कौन सी बाइसिंग होगी? दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। अब मैं इसको, यहां पर मैंने इसको फॉरवर्ड किया है और इसको क्या किया है? रिवर्स किया है। एक फॉरवर्ड है, दूसरा रिवर्स है। यहां पर मैं रिवर्स भी कर सकता हूं और यहां पे फॉरवर्ड भी कर सकता हूं, तो दो बाइसिंग होगी। यहां पे फॉरवर्ड, यहां पे फॉरवर्ड, तो तीसरी हो गई। यहां पर रिवर्स, यहां पर रिवर्स, तो चार हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग इन दी ट्रांजिस्टर, दैट इज द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड द रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आपके सामने एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिंग इन दी ट्रांजिस्टर। पहला जंक्शन कौन सा है? एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरा जंक्शन कौन सा है आपका? बेस कलेक्टर जंक्शन। और फिर उसके बाद में जिसको मोड हम बोलते हैं, या फिर टाइप ऑफ बाइसिंग बोलेंगे, मोड बोलेंगे, कौन से मोड में काम कर रहा है। तो अगर मैंने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड किया और इसको रिवर्स किया, तो ये कौन सा मोड होगा? इट विल बी एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? इट एक्ट एज दी एंटी। ओके, और यदि इसको मैंने फॉरवर्ड किया और इसको भी फॉरवर्ड किया, तो इट विल एक्ट एज दी सैचुरेशन, और सैचुरेशन में जो है ऑन स्विच की तरह काम करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि मैंने इसको रिवर्स किया और यहां इसको भी मैंने रिवर्स किया, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन द इनपुट जंक्शन एंड दिस इज द बेस कलेक्टर जंक्शन विच इज द आउटपुट जंक्शन। जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले बनना है तो ये इनपुट है, ये बाद में बनना है तो ये आउटपुट है। तो 1 इज इनपुट एंड 2 इज द आउटपुट। तो अगर मैंने दोनों को रिवर्स किया, एमीटर बेस को रिवर्स किया और बेस कलेक्टर को रिवर्स किया, तो ये कौन सा बन जाएगा? दिस विल बी योर कट ऑफ। और कट ऑफ में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? इट एक्ट एज द ऑफ स्विच। इन द कट ऑफ मोड इट एक्ट एज द ऑफ स्विच। और यदि मैंने कनेक्शंस उल्टे कर दिए विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिव, अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया और इसको फॉरवर्ड कर दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड इनवर्स एक्टिव और द इन्वर्टेड। इनवर्स एक्टिव और द इन्वर्टेड। ओके,
लेट मी रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स। देखिए दो टाइप के जंक्शन है। पहला जंक्शन कौन सा है? एमीटर बेस जंक्शन। दूसरा जंक्शन कौन सा है? बेस कलेक्टर जंक्शन। और उसके बेसिस पर आपके डिफरेंट मोड्स हैं। अगर आपने पहले जंक्शन को फॉरवर्ड किया है, दूसरे को रिवर्स किया है, तो मोड कौन सा होगा? एक्टिव। और एक्टिव में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? एम्पलीफायर की तरह। और कैसे काम करता है ये हम आपको फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे। उसके बाद में अगर आपने पहले जंक्शन को फॉरवर्ड किया है, दूसरे को भी फॉरवर्ड किया है, तो इट विल एक्ट एज अ सैचुरेशन मोड एंड इन द सैचुरेशन ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ऑन स्विच। अगर आपने पहले जंक्शन को रिवर्स किया, दूसरे को रिवर्स किया है, तो इट विल एक्ट एज द कट ऑफ मोड एंड द कट ऑफ मोड ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ऑफ स्विच। ट्रांजिस्टर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ स्विच। और यदि आपने पहले जंक्शन को रिवर्स किया है और दूसरे को फॉरवर्ड किया है, तो ये फर्स्ट केस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो इट विल बी कॉल्ड इनवर्स एक्टिव और द इन्वर्टेड मोड। इन्वर्टेड मोड में ट्रांजिस्टर का जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादातर या तो बफर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्कशन ऑन दी ट्रांजिस्टर, types of transistor, BJT, FET, MOSFET, and the construction, symbol of the transistor, and what we have the types of the mode of the transistor. There are 4 modes: inverse, active, saturation, and the cutoff on the basis of the biasing of the 2 junction, that is input junction and the output junction. I hope you like the video, and if you have any doubts or any comments, do ask me or do post them. Thank you.